Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum and good morning, my dear students. I am Hanif Khan, and today I am going to discuss drama King Lear, written by William Shakespeare. But going towards the drama, let us discuss first about William Shakespeare. William Shakespeare was born on 26 April 1564 and he was died on 23rd April 1616. William Shakespeare belonged to England and he was an English playwright, poet, and an actor. He is considered to be the greatest writer in English literature and the world's greatest dramatist. He is very much famous for his plays. His plays have been translated in almost all living languages. He is also considered to be England's national poet. Shakespeare wrote 39 plays, including comedies, histories, tragedies. What is comedy? Comedy is a entertainment consisting of jokes intended to make the audience laugh. Shakespearean comedies are full of humor with happy ending. In the end of the play, couples get married. Shakespeare also wrote 10 history plays, each based on an English king and the period in which he reigned. Shakespeare wrote about Henry IV, who was the king of England. He also wrote about Richard III, who was an English monarch of his time. And what is tragedy? Tragedy deals with serious action, and we will discuss about tragedy in detail in the coming slides. So let's move towards sonnets. He wrote 154 sonnets. What is sonnet? Sonnet is a poem of 14 lines in which a poet describes his feelings, emotion, and experiences. His famous plays are Hamlet, Othello, King Lear, Romeo and Juliet, Twelfth Night, Macbeth, etc. As we are going to start King Lear, and King Lear is actually a tragedy, so that is very much important. You need to know about tragedy, that what is tragedy as a tragedy actually. So before moving towards the drama, let us discuss tragedy in general. And according to Oxford Dictionary, a drama that presents the downfall of a dignified character or characters who are involved in historically or socially significant events. ट्रेजेडी किसी मुअज़्ज़ज़ किरदार या किरदारों की ज़वाल को पेश करती है जो कि तारीख़ी या माशरती अहम वाक़यात में मसरूफ़ होते हैं. A tragedy ends in catastrophe using death for the main characters. ट्रेजेडी का इख्तिताम तबाही पे होती है. अमूमन जो मेन किरदार होते हैं उनकी मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं. जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, हैमलेट, मैकबेथ, अमेरिकन ब्यूटी, डेथ ऑफ अ सेल्समैन. हैमलेट में भी, हैमलेट इज एक्चुअली रिटन बाय शेक्सपियर. इसमें भी लास्ट में जितने भी मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो मर जाते हैं. मैकबेथ में भी इस तरह होता है. Macbeth is also written by Shakespeare. American Beauty is also tragedy written by American writer. And that is Alan Booth. And Death of a Salesman is also tragedy, and that is written by an American writer, Arthur Miller. Now, we are moving towards the most important part of today's lecture, that is Aristotelian tragedy. And we will discuss the definition of tragedy given by Aristotle. And that is important in a sense that all of the writer dramatists, whether they belong to England or American literature, they follow Aristotle definition of tragedy. So let's
move towards Aristotle's definition of tragedy. Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude, in language embellished with each kind of artistic ornament in the form of action, not of narrative, with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions. Understand? मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी let me explain actually. Tragedy is an imitation of an action that is serious and complete. एरिस्टोटल कहता है कि ट्रेजेडी में एक्शन होता है, लेकिन एक्शन सीरियस होता है और कंप्लीट भी होता है, उसमें कोई फनी कॉमेडी या कॉमिक एलिमेंट नहीं होता, एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, और उसका जो साइज होता है, ड्रामे का जो साइज होता है वो कंसिडरेबल होता है, नीदर टू शॉर्ट नीदर टू लॉन्ग, इन लैंग्वेज एम्बेलिश्ड, और ये एक सीरियस, एक लॉफ्टी, एक सुपीरियर लैंग्वेज में होता है। इसके जो अल्फाज होते हैं वो आला होते हैं, डिग्निफाइड होते हैं, with each kind of artistic ornaments, और इसमें ब्यूटिफिकेशन लाने के लिए फिगर ऑफ स्पीचेस, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स यूज किए जाते हैं। एंड ट्रेजेडी इज इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, नॉट ऑफ नैरेटिव। ट्रेजेडी में परफॉर्मेंस होती है, एक्शन होता है, स्टेज पे ये परफॉर्म किया जाता है, ये नरेशन में नहीं होता जिस तरह नावल होता है। नावल नैरेटिव फॉर्म में होता है, जबकि ड्रामा एक्शन होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉवल एंड ड्रामा, विद इंसिडेंट्स अराउजिंग पिटी एंड फियर। और जो इंसिडेंट्स होते हैं ट्रेजेडी में, जो हीरो सफ़र होता है, जो हेरोइन उसमें मतलब सफ़र होती है, वो ऑडियंस के दिल में पिटी और फियर पैदा करती। जब हीरो सफ़र होता है ड्रामे में, विलन उस पर जुल्म करता है, उसके साथ ज्यादती करता है, हम खफा होते, हम उसके लिए तरस मतलब महसूस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें डर भी लगा होता है। डर कैसे हमें लगा होता है? क्योंकि पिटी तो हम उस कैरेक्टर के लिए मतलब फील करते हैं, फियर अपने आप के लिए करते हैं। मतलब हम कभी कभी ड्रामे में इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मतलब बिज़ी और मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम समझते हैं कि ड्रामे में हीरो में हो और हीरोइन जो है वो मेरे साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी दोस्त है, और अगर उसमें वो हीरो या हीरोइन जो है वो सफ़र होते हैं तो हम उसके लिए रहम, तरस महसूस करते हैं और अपने लिए खौफ महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को मतलब वो हीरो या हीरोइन जो है वो समझते हैं। वियर विद टू अकम्प्लिश इट्स कैथारसिस ऑफ सच इमोशंस, और जो इमोशन, जो एहसासात थ्रू पिटी और फियर हम में अराउज होते हैं, वो कैथारसिस के ज़रिए ख़त्म हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। कैथारसिस बड़ास को कहते हैं, मतलब जो जब आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाते हैं और फिर आप मतलब रो लेते हैं या बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं उसके बारे में, तो आपका दिल का बोझ जो है वो हल्का हो जाता है। तो ड्रामे के अख्तिताम पे जो पिटी और फियर की जो फीलिंग्स और इमोशंस है वो कैथारसिस के थ्रू मतलब रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एरिस्टोटल मज़ीद जो है वो मतलब उसने 6 एलिमेंट्स मतलब इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि ड्रामे के लिए ये 6 एलिमेंट जो है वो ज़रूरी है एक ट्रेजेडी के लिए। उसमें पहला जो है वो प्लॉट है। प्लॉट क्या है? द इंसिडेंट्स आर स्टोरी लाइन। ड्रामे या ट्रेजेडी में जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो ड्रामे की कहानी होती है, वो एक्चुअली प्लॉट होता है। इस प्लॉट को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड में। और कैरेक्टर,
ड्रामे के लिए जो है वो कैरेक्टर का होना भी ज़रूरी है। फिज़िकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, मॉरल पीपल रिप्रेजेंटेड इन द प्ले। मतलब उसमें ऐसे किरदार होने चाहिए जो हमारे माशरे के हो, जो इंसान हो, जो हमारी तरह हो, जो हमारी तरह सोचते हो, ताकि हम उसके लिए मतलब ताकि हम उनके लिए एक्चुअली क्या करें, मतलब उनके लिए महसूस करें, उनके लिए जज्बात रखें। अगर किसी ड्रामे में इंसान ना हो, उसमें जिन्नात हो या कोई और मखलूक हो, तो हम उस तरह उनके लिए मतलब पिटी और फियर नहीं रखेंगे। थॉट थीम मतलब इनसाइड इनटू ह्यूमैनिटी एंड लाइफ। मतलब एक ड्रामे के लिए थीम का होना ज़रूरी है, थॉट के लिए थॉट का होना जो है वो ज़रूरी है। फॉर म्यूज़िक, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, मौसीकी होती है, वो भी ज़रूरी है। फॉर स्पेक्टिकल, सीनरी एंड अदर विजुअल एलिमेंट्स। स्पेक्टिकल मतलब जो बैकग्राउंड में सीनरीज होती है या जो कस्ट्यूम्स होते हैं जो कैरेक्टर्स पहनते हैं ड्रामे के लिए या मुख्तलिफ किरदार के लिए, तो स्पेक्टिकल का होना भी ज़रूरी है। और लास्ट जो है वो डिक्शन है। डिक्शन लैंग्वेज को कहते हैं, वोकैबलरी को कहते हैं, वर्ड्स, डायलॉग उसको कहते हैं। तो ये 6 एलिमेंट है एरिस्टोटल ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि एक ट्रेजिडी तभी जो है वो एक ग्रेट और अजीम ट्रेजिडी होगी जब उसमें ये चीज़ें शामिल होंगी। अच्छा, प्लॉट की ये डेफिनेशन है, पहले तो ऐसे पढ़ते। प्लॉट इज द लिटरेरी एलिमेंट दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोरी। इट शोज अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स एंड एक्शन विद इन अ स्टोरी। फिर प्लॉट की कुछ कंस्ट्रक्टिव पार्ट्स है। जब फिल्म या ड्रामा शुरू होता है तो उसका एक बिगिनिंग होता है, एक्सपोजिशन होती है, उसे बिगिनिंग भी कहती है और एक्सपोजिशन भी। एरिस्टोटल कहता है कि मतलब एक ट्रेजेडी का प्रॉपर बिगिनिंग या प्रॉपर एक्सपोजिशन होना चाहिए। जब ड्रामा शुरू होता है, ट्रेजेडी शुरू होती है, तो उसकी जो मतलब इब्तिदा है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इब्तिदा में क्या होता है, कैरेक्टर्स जो है वो कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन होती है। वो ख़ुद अपने इंट्रोडक्शन नहीं करते कि मैं हीरो हूँ, ये हीरोइन है, बल्कि उनके एक्शन के ज़रिए हमें पता चलता है कि हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलन है, ये सब कैरेक्टर्स है। और फिर सेकंड पार्ट जो है वो राइजिंग एक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद मतलब राइजिंग एक्शन होता है। जब हीरो का हीरोइन के साथ मतलब राब्ता हो जाता है या सामना होता है या विलन के साथ, तो उसमें एक्शन में इजाफा होता है। और प्लॉट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो क्लाइमेक्स है, या इसे मिडल भी कहते हैं। जब ड्रामा बिल्कुल ट्रेजेडी जो बिल्कुल पीक तक पहुंच जाए, उसमें एक्शन बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो, जहाँ पे मतलब हमें पता ना हो कि इसके बाद क्या होने वाला है, तो वो क्लाइमेक्स है। और फिर क्लाइमेक्स के बाद मतलब जब कन्फ्लिक्ट हो जाती है हीरो और विलन का, और उसके बाद मतलब जो हल की तरफ जाता है, तो वो फॉलिंग एक्शन है। तो लास्ट में फिर क्या होता है, एंड या रिजोल्यूशन। लास्ट में फिर मतलब जो ड्रामा का अख्तिताम हो जाता है, ट्रेजेडी का अख्तिताम होता है, उसे एंड या रेजोल्यूशन कहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेजेडी की जो एंड है वो सैड एंडिंग होती है। लास्ट में जो है वो मेन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मर जाते हैं। स्टेज मतलब डेड बॉडी से भर जाता है और इंतहाई सीरियस और सैड एंडिंग होती है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन थी ट्रेजेडी के हवाले से। मुझे उम्मीद है दैट वुड गिव यू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रेजेडी, द जॉनरा ऑफ किंग लियर। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा उसमें मैं कैरेक्टर स्केच आपको दूँगा किंग लियर का। और ये लेक्चर आप लोग गौर से सुने, अंडरस्टैंड करें, और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग से पूछें। थैंक यू सो मच।